الیکشن کمیشن کے احکامات پر مومن آباد اور اورنگی ٹاؤن کی انتظامیہ نے مشترکہ کارروائی کی ہے۔ ممنوعہ سائز کے پینل فلیکسز اور بینرز اتار کر ضبط کر لیے۔ مزید بتائیں گے رضوان احمد۔ بالکل عام انتخابات کی آمد ہے اور اس سلسلے میں ضابطہ اخلاق بھی امیدواروں کے لیے موجود ہے الیکشن کمیشن کا، لیکن خلاف ورزی بدستور شہر بھر میں جاری ہے۔ انتظامیہ بھی حرکت میں ہے، چوہے بلی کا کھیل جو ہے وہ بدستور جاری ہے، وائلیشن ہو رہی ہے اور اس کے خلاف کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں۔ میونسپل کمشنر اورنگی ٹاؤن آغا فہد کی زیر نگرانی یہ آپریشن ہوا، ساتھ موجود ہیں ہمارے، ان سے بات کرتے ہیں۔ فرمائیے گا سر، کیا کارروائی کی آپ نے؟ اچھا، ہماری میٹنگ ہوئی تھی ڈی سی ویسٹ کے ساتھ اور ایس ایس پی ویسٹ کے ساتھ، تو انہوں نے ہدایت دی تھی کہ آپ یہ اپنے بینر جتنی بھی ہیں یہ ہائی کورٹ کی طرف سے حکم آیا کہ ہٹائیں۔ تو رات کو پھر ہم نے آپریشن کی تیاری کی 12 بجے، اس کے اندر میں بھی تھا، اس میں اپنا مومن آباد کے جو ایم سی صاحب ہیں زین شاہ صاحب وہ بھی تھے۔ ہم دونوں نے کمبائنڈ ایک آپریشن کیا تھا، اپنے آفس سے لے کے پونے پانچ سے لے کے آگے تک جو برج ہے وہاں تک ہم لوگوں نے یہ کہا۔ یہ بتائیے گا کہ یہ تو خلاف قانون جو ہے کام جو کیا گیا اس کے خلاف آپ نے کارروائی کی، رات میں ہی یہ آپریشن کیوں ہوتا ہے؟ اچھا، رات میں ہم نے اس لیے کی کہ رات میں ایک تو رش نہیں ہوتی ہے، اب صبح کے ٹائم ٹریفک اتنی ہوتی ہے کہ نہیں کر سکتے ہم، اس وجہ سے ہم نے رات کا وہ کیا تھا۔ وال چاکنگ کی بھی وائلیشن بہت زیادہ شہر بھر میں دکھائی دے رہی ہے، آپ بتائیے کہ آپ کے ٹاؤن کی حدود میں کیا صورتحال ہے اور اس کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں آپ؟ ہم نے 70% تو وال چاکنگ ہم نے ختم کی ہے، چونا مار کے، اور ابھی باقی جو بھی جہاں سے ہم کو آتی ہے کمپلین آتی ہے تو وہاں بندے بیچتے ہیں ہم لوگ۔ اچھا، کچھ اطلاعات یہ آئی ہیں کہ یہ جو مٹیریل آپ نے اشتہاری مواد امیدواروں کا ضبط کیا تھا اس میں سے کچھ جو ہے وہ امیدوار واپس لے گئے ہیں، یہ کیا وجہ؟ وہ ظاہری باتیں آئی، انہوں نے مجھے یہی بتایا کہ آپ ہم لوگ کو دے دیں، ہم دوبارہ نہیں لگائیں گے، بس آپ کو پتہ ہے، پھر ہم نے دے دیا، میں نے لے جائیں۔ بالکل، کہا یہ جا رہا ہے کہ وائلیشن جو کی گئی ہے اس کے خلاف انتظامیہ حرکت میں ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شہر میں یہ سلسلہ جو ہے وہ بتدریج بڑھتا جا رہا ہے، جو کہ شہر کی بدنمائی کا سبب بھی بن رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انتشار کا سبب بھی بنتا ہے اور کشیدگی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ امیدواروں کو چاہیے کہ وہ اس غیر قانونی عمل سے اجتناب کریں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ عام انتخابات کی گہما گہمی بڑھ گئی ہے، طلبہ کی آگاہی کے لیے نجی اسکول میں الیکشن کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانیں گے صبا پرویز سے۔ الیکشنز کی گہما گہمی جو ہے وہ عروج پر ہے، جہاں پر شہری تعلیمی اداروں میں جا کر جو ہے وہ الیکشنز کی مہم کا آغاز کر رہے ہیں۔ دوسری جانب جو ہے وہ اسکولوں میں بھی الیکشن کی مہم کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے۔ نجی اسکول میں موجود ہوں جہاں پر آپ میرے کیمرہ مین اجلان اگر آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر اس وقت الیکشنز کی آگاہی مہم جو ہے وہ یہاں پر جاری ہے، جہاں پہ طلبہ جو ہیں وہ اپنے جو ہے وہ من پسند انتخاب کو جو ہے وہ پارٹی کو گروپ کو جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، اور دوسری جانب جو ہے وہ یہاں پر موجود بھی ہیں، اساتذہ بھی موجود ہیں اور ان کے ساتھ اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں، مجھے بتائیے گا کہ کس طرح سے ووٹ کاسٹ کیا؟ پہلے ہمیں پرچی ملی ہے، اس کے بعد ہم نے اسٹیمپ لگائی ہے، پھر ہم لوگ نے ڈالا ہے ووٹ ڈالا، ٹیچرس نے ہمیں سکھایا ہے اور میم نے ہمیں ہر پرنسپل ٹیچرس اپنے ووٹ ڈالنا سکھایا ہے۔ اچھا، اس وقت جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے بچی جس نے ابھی ووٹ کاسٹ کیا ہے، مجھے بتائیں کہ کس کو سپورٹ کر رہی ہیں اور کس طرح سے ووٹ کاسٹ کیا؟ فاطمہ جنہ کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم، اور ابھی ہم نے ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ پہلے ہمیں پیپر ملا تھا، پھر ہمارے نشان لگایا گیا ہے اور اس کے بعد ہم نے بیلٹ باکس میں ڈالا۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو ووٹ کاسٹ کرتے؟ ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے ووٹ کاسٹ کر کے۔ اچھا، اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹیچرز بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں، مجھے بتائیے کہ کتنا ضروری ہے بچوں میں اس چیز کی آگاہی دینا؟ اس بچوں میں آگاہی دینا تو بہت زیادہ ضروری ہے، اویئرنیس کے لیے ہی یہ پروگرام ہم لوگوں نے کروایا ہے۔ ہمارے سر ارشد ملک کی یہ ساری ایفرٹ ہے، انہوں نے سارا ارینج کیا ہے، تو یہ بچوں کے ذریعے گھر گھر جائے گا یہ پروگرام، اور یہ اویئرنیس تو پیرنٹس کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ ضرور بھائی یہ اگر اسکول میں ہوا ہے تو ہمیں ضرور جو ہے نا ووٹ ڈالنا چاہیے۔ بہت سے پیرنٹس ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو نہیں ڈالتے ہیں، ووٹ نہیں ڈالتے، تو ہمارے بچوں کے ذریعے ہم نے پروگرام ہے تاکہ بچے جو ہے اپنے پیرنٹس کو باہر نکالیں اور ووٹ کاسٹ کریں، کیونکہ ووٹ تو جو ہے وہ قوم کی امانت ہے، ووٹ ضرور ڈالنا چاہیے۔ جی بالکل، بچوں کے ذریعے جو ہے وہ یہاں پر یہ ووٹ کاسٹ کرنے کی مہم کا آغاز کی ہے تاکہ وہ اپنے گھر پہ جا کر والدین کو اس چیز پہ جو ہے وہ راضی کریں کہ ووٹ ڈالنا کتنا ضروری ہے اور اپنا جو ہے وہ حکمران کس طرح سے جو ہے وہ آپ منتخب کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب یہاں پر طلبہ موجود ہیں جنہوں نے ووٹ ڈالا۔ 6 پارٹیز یہاں پر بنائی گئی ہیں، گروپس بنائے گئے ہیں، اور جس پہ جو ہے وہ طلبہ اپنے پسند کے گروپ پہ جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کر کے لیڈر کو منتخب کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ صبا، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ رات میں صرف ایک ہفتہ باقی رہ گیا ہے، آنے والی حکومت سے نوجوانوں کی کیا توقعات ہیں، جانتے ہیں میر کیریو سے۔ جی بالکل،
عام انتخابات 2024 میں صرف ایک ہفتہ رہ گیا ہے، جبکہ ملک بھر میں جو ہے سیاسی گھما گھمی بھی زور و شور سے جاری ہے۔ ملک میں جو 60% نوجوان طبقہ ہے اس کی بھی عام انتخابات میں جو حکومت بننے والی ہے اس سے کافی توقعات ہیں۔ عام جو یہاں کی عوام ہے اس کی تو توقعات ہیں ہی ہے، لیکن جو نوجوان طبقہ ہے ان کی بھی اس سے جو آنے والی حکومت ہے اس سے کافی توقعات ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کس طرح سے بہتر لایا جائے، تعلیمی نظام میں کیا بہتری ہونی چاہیے۔ اس وقت میں موجود ہوں جامعہ کراچی میں، جہاں کافی نوجوانوں کی تعداد موجود ہے۔ ایک نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بتائیے گا کہ نوجوانوں کے لیے کون سے پروگرامز ہونے چاہیے آنے والی حکومت میں، کیا مطالبات رکھیں گے؟ سب سے پہلی چیز تو ہم نوجوانوں کے لیے جو ہے نا، ابھی پاکستان کی جو نوجوان ہیں وہ سب سے زیادہ کمزور سوشل میڈیا پہ، اور کمزور ہونے کی وجہ سے بہت ساری نگیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا ان کو لے کے جانا چاہتی ہے، اور سوشل میڈیا ان کو جس طرح لے کے جانا چاہتی ہے اس طرح وہ چلے جاتے ہیں۔ تو میرے خیال سے اسکولز ہو، کالجز ہو یا یونیورسٹیز ہو، ہمارا کوئی ایسا سبجیکٹ ہونا چاہیے جس میں سوشل میڈیا کے متعلق ہمیں نالج فراہم کی جائے۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ ایک اور نوجوان بھی جامعہ کراچی کا موجود ہے، ان سے بھی بات کریں گے۔ نوجوانوں کے لیے کون سے پروگرامز حکومت کو لانے چاہیے؟ جیسے 8 فروری کے بعد جو بھی حکومت بنے گی تو کون سے پروگرامز ہونے چاہیے، اسکلز کون سی ہونی چاہیے تاکہ پاکستان کا نوجوان آگے بڑھ سکے؟ سر یہ ماڈرن ہیرا ہے، جو ابھی جو ہے IT ہے، AI ہے، اس طرح کی چیزیں اب عام ہو چکی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں یہ آج تک ایک خاص مقام پر ہیں۔ عام آدمی نہ اس کی تعلیم حاصل کر سکتا ہے اور نہ کچھ۔ ملک کے اندر رہ کر جو کام وہ باہر جا کے سر انجام دیتے ہیں، وہ ہمارے ملک کے اندر رہ کر اگر سر انجام دیں تو ہمارا ملک انشاءاللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا، اور ہم بھی انشاءاللہ یہی امید کرتے ہیں۔ شکریہ۔ جی بالکل، آپ نے جامعہ کراچی کے نوجوانوں کی باتیں سنی۔ ان کا کہنا تھا کہ 8 فروری کے بعد جو بھی حکومت بنے، جو بھی پارٹی اقتدار میں ہے، ان کو چاہیے کہ نوجوانوں کے لیے ایسے پروگرامز لائیں تاکہ وہ جو یہاں سے بیرونی ملک نوجوان جا رہے ہیں وہ یہاں رہ کر ملک کی خدمت کریں اور ملکی معیشت کو استحکام پر لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ابھی آپ کو بتائیں گورنر سندھ کامران ٹیسوری پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ این 245 اورنگی ٹاؤن میں بھی گیس بحران سے دوچار ہے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ صبح بھوکے گھر سے جانے پر مجبور ہیں۔ مزید بتائیں گی ہمنا نثار۔ بالکل جی، اس وقت میں اورنگی ٹاؤن پر موجود ہوں جو اسمبلی کا حلقہ 119 اور قومی اسمبلی کا حلقہ ہے، جہاں بنیادی سہولیات سے یہاں کے لوگ محروم ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ بھی جو اس وقت کا ہے وہ گیس کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے جتنے شہری ہیں وہ کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ سر مجھے بتائیے کہ گیس کے کیا مسائل ہیں، یہاں پہ کتنی دشواری ہے؟ گیس کے مسائل یہ ہیں بیٹا کہ یہاں پہ گیس آتی نہیں ہے، 2 3 دن ہو جاتے ہیں، اور اگر صبح 4 بجے گیس آئی اور 2 منٹ باخدا یہ مشکل سے جلتی ہے، اس کے بعد بند ہو جاتی ہے۔ ہمارے بچے اسکول سے جانے سے رہ گئے، روزانہ گھر میں ہم لوگ ہوٹل سے کھا کے پریشان آ گئے۔ ان سیاستدانوں کی وجہ سے ہم قرض دار ہو گئے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ہم ووٹ دیں تو کس کو دیں، کس پہ بھروسہ کریں؟ ہمیں اب کسی پہ بھروسہ نہیں۔ ہم ایک پارٹی کو نہیں کہہ رہے، ہم سب کو کہہ رہے ہیں، کوئی بھی سیاستدان ہو، ہمیں کسی پہ بھروسہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کہیں گے آپ گیس کے مسائل کی وجہ سے کس طرح کی دشواری کا سامنا ہے؟ بہت زیادہ گیس کا ہے، صبح رات میں جاتی ہے تو صبح آتی ہے، پھر سارا دن جو ہے ہوتی نہیں ہے گیس۔ بندہ کرے تو کیا کرے؟ گیس کے معاملے میں جو ہے نا، بندہ گھر سے جائے، گھر پہ جائے تو چائے تو ملتی ہی نہیں ہے، گیس ہی چلے جاتی ہے۔ بندہ ووٹ دے تو کس کو دے؟ بہت شکریہ۔ یہاں ہمارے ساتھ اورنگی ٹاؤن کے علاقہ مکین موجود تھے، اور شہر بھر کی طرح اورنگی ٹاؤن میں بھی گیس کے مسائل سنگین ہو چکے ہیں۔ 2 سالوں سے جو گیس کے بحران چل رہا ہے، یہاں لوگ جو ہیں باہر کا کھانا کھانے پر مجبور ہو چکے ہیں، بچے صبح بھوکے جا رہے ہیں، لیکن کوئی کسی بڑے حکمران کو کوئی سروکار نہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ آئندہ الیکشنز میں کس کو ووٹ دیں، کس کو نہ ووٹ دیں، یہ سمجھ سے باہر ہے، اور اگر اس طرح کے مسائل مزید رہتے ہیں تو کسی کو بھی ووٹ نہیں دیں گے۔ جی، نگراں حکومت نے الیکشن سے پہلے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 273 روپے 70 پیسے مقرر کر دی گئی۔ محمد حماد کی رپورٹ۔ مہنگائی کا نیا طوفان آنے کا خطرہ۔ نگراں حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں یکمشت 13 روپے 55 پیسے اضافہ کر دیا۔
पेट्रोल की नई कीमत 273 रुपए 70 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 2 रुपए 75 पैसे इजाफे से 278 रुपए 96 पैसे पर पहुंच गई। लाइट डीजल भी 2 रुपए 3 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। मट्टी के तेल की कीमत में 24 पैसे फी लीटर कमी। मट्टी के तेल की नई कीमत 186 रुपए 62 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत में बड़े इजाफे पर शहरी फट पड़े। कहा इस महंगाई के दौर में पेट्रोल भरवाएं या घर का खर्चा पूरा करें। निगरान हुकूमत पेट्रोल के निर्ख 150 रुपए लीटर करे। पेट्रोल जब महंगा होता है तो सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं, जितनी भी खरीदारी रोज़मर्रा की अशिया है महंगी हो जाती है। तो कम से कम पेट्रोल की कीमत सस्ती है, उसके साथ साथ जितनी भी कीमतें गरीब आदमी है, अभी देखो जब ऐसे अशिया की कीमतें बढ़ेंगी, रोज़गार है नहीं, मैशियत नहीं है, मतलब कारोबार नहीं है, तो लोग परेशान हाल हैं घरों में। सहूलियत देना चाहिए कम से कम, जो है ना बहुत ज़्यादा पिस रहे हैं हर जगह से, चाहे दुकानदार के पास जाए, चाहे पेट्रोल वाले के पास जाए, जहाँ पर भी जाए। लेकिन ये कि हम बोल रहे हैं कि यार बस कुछ ना कुछ करना चाहिए। शहरियों का कहना है कि निगरान हुकूमत जाने से कबल महंगाई नहीं, आवाम को रिलीफ देकर जाए। कराची इंटरमीडिएट बोर्ड में अंधेर नगरी चौपट राज। 11वीं जमात के तलबा के लिए स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराना मुश्किल हो गया। इस हवाले से सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची में 11वीं जमात के मुतनाज़ा नताइज। स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराना भी तलबा के लिए इम्तिहान बन गया। इंटरमीडिएट बोर्ड में मखसूस गिरोह रिश्वत वसूली करने लगा। लाइन से बचने के लिए तलबा स्क्रूटनी फॉर्म के अलावा भी पैसे देने पर मजबूर हैं। मैं सुबह से आया हूँ स्क्रूटनी के लिए, यहाँ भटक रहा हूँ बिल्कुल। तो यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो भी गाशा ले रहे हैं कि भाई मैं कर दूँगा, 5,000 रुपये दे दो, 2,000 रुपये दे दो, मैं कर दूँगा ये चीज़। और बाकी जो अंदर वो फॉर्म भरने आ रहे हैं बोले 200 रुपये दे दो, वो फॉर्म भर के दे रहे हैं आपको। इंटर बोर्ड में बैंक के बाहर लाइन में लगे तलबा बोर्ड इंतजामिया से नाला दिखाई दिए। कहते हैं कि स्क्रूटनी फॉर्म सिर्फ एक बहाना है। नताइज की खराबी का जिम्मेदार इंटर बोर्ड कराची खुद है। मेरी बात यही हुई तो उन्होंने कहा स्क्रूटनी करवाइए। जगह जगह हम लोग सुबह से आए हुए, जगह जगह धक्के खा रहे हैं। कोई कहता है कमरा नंबर 2 में जाओ, कोई कहता है 17 में जाओ, कोई कहता है कि पैसे दें हमें तो हमारे जो ना ये काम आपका फ़ौरन हाथ के हाथ कर देंगे। सुबह से ये वक्त हो गया है और बच्ची को भी ना तालीम का हर्ज हो रहा है इस चक्कर में। मुझे ये लगता है इन्होंने किसी के भी पेपर जो है ना वो चेक ही नहीं किए इन्होंने, क्योंकि 2 नंबर किसी को, 3 नंबर, ये जो एक जो क्वेश्चन है ना वो 10 नंबर का है, तो 2 और 3 नंबर का क्या हिसाब है। एक तरफ 11वीं जमात के तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है तो दूसरी तरफ बोर्ड में मखसूस गिरोह तलबा से पैसे लेकर बगैर लाइन उनके फॉर्म जमा करा रहे हैं, जबकि पैसे ना देने वाले तलबा को हिरासा भी किया जा रहा है। कैमरामैन मन्नान के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। कराची पुलिस के दावे धरे के धरे रह गए। शहर में भत्ताखोरी का इंकशाफ हुआ है। ओल्ड सिटी एरिया के ताजिर रहनुमा ने रात से पर्दा उठा दिया। मिराज अख्तर की रिपोर्ट। कराची में भत्ताखोर एक बार फिर से बेलगाम हो गए। ओल्ड सिटी एरिया के ताजिर खामोशी से भत्ता देने पर मजबूर। ताजिर रहनुमा हकीकत सामने ले आए। कराची सिटी ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन शर्जील गोपलानी ने रात से पर्दा उठा दिया। कहा गैंगवार के रोपोश कारिंदे वसीउल्लाह लाखो और शकील पठान बैरून मुल्क से बैठकर बासानी ओल्ड सिटी एरिया के ताजिरों से भत्ता बटोर रहे हैं। खौफजदा ताजिर अब भी खामोशी से भत्ता दे रहे हैं। हो ये रहा है कि जो 2-3 नाम चल रहे हैं, जिसमें एक है शकील पठान, एक है वसीउल्लाह लाखो और एक का नाम, और ये लोग सब लोग बैठे हुए हैं इस वक्त ईरान के अंदर। तो ये वहाँ से जो हैंडलिंग हो रही है और जो नंबर है वो या तो यूके का नंबर चल रहा है या दुबई का नंबर है या फिर सिम जो है वो आपकी ईरान के नंबर की चल रही है। ताजिर रहनुमा बोले कि पुलिस और रेंजर्स की जानिब से भत्ताखोरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। चंद माह के दौरान भत्ताखोरी में मुलविस 2 दर्जन से ज्यादा मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन गैंग वॉर के स्लीपर सेल्स अब भी एक्टिव हैं। जो लोग लेने वाले हैं वो इतने मजबूत लोग नहीं है जो लेके जा रहे हैं। जो अब तक सामने चीज़ें आई हैं नए लोग हैं और कुछ लोग तो जो है वो कराची के रहने वाले भी नहीं हैं जो ये भत्ता लेके जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कराची के रहने वाले भी हैं। तो इसमें ये है कि अब वो लोगों के खौफ का तो फ़ायदा उठा के वो ऐसे लोग चल रहे हैं जिनको तक पुलिस और रेंजर्स तक जब ये केस पहुंचता है तो उन तक रसाई उनकी आसान हो जाती है और ये तमाम लोग पकड़े जा रहे हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक बैरून मुल्क रोपोश गैंग वॉर कारिंदों की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रुजू किया है। उन्हें जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ मिराज अख्तर, सिटी 21। जाली वकीलों के गिर्द घेरा तंग। कराची बार एसोसिएशन की नई काबीना ने सिटी कोर्ट में बड़ा क्रैकडाउन किया, कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानेंगे जवाद आसिफ से।
जी बिल्कुल, देखें कराची सिटी कोर्ट में जाली वकीलों की शामत आ चुकी है। कराची बार एसोसिएशन की जो नई काबीना है, उन्होंने जो जाली वकील हैं जो कि साइलिन को लूटते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक मुहिम शुरू कर रखी है और उन्हें पकड़कर उनके ख़िलाफ़ मुकदमात का इंदराज करवा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मीडिया कमेटी की चेयरमैन कराची बार की एडवोकेट फौजिया खान से बात करते हैं। अब बताइएगा, जब से आपने चार्ज संभाला है, इतने दिनों में कितने जाली वकील अब तक आप लोगों ने पकड़ चुके हैं? अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमने अब तक 9 FIR दर्ज कर चुके हैं जाली वकील के ख़िलाफ़, और तकरीबन बंडल्स ऑफ टाउट्स हैं इस वक्त सिटी कोर्ट में जो दनादन घूम रहे हैं, कस्टडियों को पकड़ रहे हैं और उनसे जो है फीसिस वसूल कर रहे हैं वकीलों के नाम पर। और 9 FIR दर्ज हैं, और बाकी क्योंकि प्रेशर भी बार को बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है इनकी, लेकिन हम सब एक हैं और इंशाल्लाह हम साल के जनवरी से लेकर इंशाल्लाह दिसंबर तक हमारी यही हो गया कि हम किसी टाउट को सिटी कोर्ट में एंट्री नहीं होगी। अच्छा, इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं कराची बार क्रिमिनल कमेटी के वाइस चेयरमैन जाहिद हुसैन साहब। जाहिद साहब, ये बताइएगा, अब इनको आपने पकड़ा है, क्या कार्रवाई होगी और सिटी कोर्ट में कितने टाउट्स हैं आखिर और ये कैसे आ गए यहाँ पर? मैडम आपको बता चुकी हैं कि 9 FIR अब तक हम करवा चुके हैं, और उसके अलावा टाउट्स के हवाले से मैं ये बता दूं कि क्लियर वर्जन है KBA का कि डेली बेसिस पे अगर टाउट्स के खिलाफ हमें 10 FIR हैं और 20 FIR भी करवानी पड़ी, हम करवाएंगे। टाउट्स का सफाया KBA से इंशाल्लाह ताला ख़त्म करके रहेंगे, और असल जो वकला हैं जिनकी रोज़ी रोटी पे डाका डाला जाता है वो इनको दिलाई जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि अब तक जो है वो 9 जो जाली वकील हैं वो पकड़े जा चुके हैं कराची सिटी कोर्ट से, जो कि सादा लोग आवाम को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे लूटते थे और वकीलों की रोज़ी रोटी पर डाका मारते थे। जबकि उनका ये भी कहना था कि अब इनके खिलाफ अगर कोई ज़मानत लेकर भी आता है तो ये उनकी ज़मानतें भी मुस्तरद करवाएंगे, और ये जो सिलसिला है ये चलता रहेगा जाली वकीलों के खिलाफ। मुल्क की सनतों के लिए बड़ी खुशखबरी है। IMF ने इंडस्ट्री के लिए 9 सेंट्स फी यूनिट की बिजली फराहम करने की इब्तदाई मंजूरी दे दी है। मज़ीद जानेंगे अशरफ खान से। जी, देखा जाए मसाइल से घिरी हुई इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी खुशखबरी मार्केट में चल रही थी और कहा जा रहा था कि 9 सेंट पे बिजली मिलेगी। वो कहाँ तक सिलसिला पहुंचा है, इससे क्या फ़वाइद होंगे? एप्टिमा के चेयरमैन आसिफ इनाम अहमद साहब मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं? सनतकार जो परेशान थे, एक्सपोर्टर परेशान थे, कोई खुशखबरी है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल तक तो ये था, हमारी जो लेटेस्ट मुलाकात हुई थी कि ये IMF में गए हुए, और अभी इस किस्म की खबर आई है कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी अप्रूव हो गया है, तो बज़ाहिर तो इंशाल्लाह आज ये अनाउंस हो जाएगा। इससे ये है कि ये पूरी इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्रियल टैरिफ चेंज हो रहा है। आपको पता है कि इंडस्ट्री रोज़ बंद हो रही थी इस टैरिफ की वजह से, क्योंकि ये इस पे चल नहीं सकता था काम। जो 16-17 सेंट है वो रीजन से डबल और ट्रिपल था कई सूरतों में। तो इससे बहुत सनतें जो बंद हो रही हैं उनको एक सांस मिलेगी और ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी, और इससे जो है वो जो बंद हो गई हैं वो भी कुछ रिवाइवल होंगी। इस तरीके से मेरे ख्याल में तो बहुत ज़बरदस्त हुकूमत की अचीवमेंट होगी अगर ये हो गया तो। अच्छा, यहाँ पे देखें वज़ीर तिजारत ने भी कहा है कि हम एक्सपोर्ट को अगले 5 सालों में $100 अरब तक ले जाएंगे, तो उनका जो फोकस है उसमें ये अहम किरदार अदा करेगा। जी बिल्कुल, ये इसका फाउंडेशन होगा, क्योंकि एनर्जी और एनर्जी कंजम्पशन जो है वो किसी मुल्क की जो है वो बेसिस होता है। आप किसी मुल्क की तरक्की देखना चाहें कि वो तरक्की याफ्ता है, नहीं, उसकी एनर्जी कंजम्पशन स्पेशली इंडस्ट्री की देख लें, जो हमारे यहाँ पहले ही बहुत लो है, तो इसकी तरफ ये ऐसा इक़दाम में कम से कम कोई ग्राउंड तो मिले। मगर इसमें सिर्फ एक ये है कि अगर ये साल के लिए हुआ तो वो बड़ा मुश्किल होगा। इसको उसूलन तो 5-10 साल के लिए, जब हम IPP खरीदते हैं तो हम 30 साल दे देते हैं, तो कम से कम इंडस्ट्री जो लगा रहा हो उसको भी ये हक हो कि 10-15 साल का टैरिफ तो उसके हाथ में हो कि भाई इससे नीचे होगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। जी, जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे अच्छी खुशखबरी है इंडस्ट्री के लिए। तमाम इंडस्ट्री के लिए 9 सेंट में बिजली मिलेगी। जो इस वक्त कॉस्ट आ रही थी 15 से 16 सेंट, 9 सेंट पे फार्मूला बनाया गया था। अब वो हतमी ऐलान जल्द होने वाला है। उससे इंडस्ट्री की जो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, बरामदात भी बढ़ेगी, और साथ ही देखा जाए जो इंडस्ट्री बंद हो गई है वो भी चलने लगेंगी। जी, आगे बढ़ें। आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ताजिर हैरान है। इस पर मजीद बात करेंगे अयाज राना से। जी बिल्कुल, जहां हमने देखा कि ओगरा की जानिब से जो तजवीज़ दी गई थी उसके अंदर कहा यह गया था कि 10 रुपए तक जो है वो एक पेट्रोल बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन हमने अब देखा जहां रातों रात जब पेट्रोल की कीमतों का तयन किया गया उसके अंदर 13 रुपए से ज़ायद जो है वो इजाफा देखा गया, जिसके बाद अब जो है पेट्रोल की एक होशरुबा अगर हम बोलें तो इजाफा किया गया। उस पर कराची चैम्बर का क्या रद्द-ए-अमल है, मेरे साथ इस वक्त इफ्तिखार अहमद शेख साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानते। सर, ये उम्मीद तो थी कि क्योंकि अब ये जाने का वक्त था निगरान हुकूमत का, लेकिन इतना ज़्यादा बोझ डाल के जा रही है,
क्या देखते हैं आप? देखें, ये जो 13 रुपए कुछ पैसे बढ़ाया है, ये तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी। और उम्मीद यही थी कि ये जो कम करते हैं, 3-4 रुपए कम करते हैं, इसी तरह 3-4 रुपए का कोई फर्क आ गया तो आ गया। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा बोझ इस वक्त जो महंगाई का आलम है, कराची शहर क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई का आलम है, ये सीधा डायरेक्ट अवाम पर पड़ता है। और ये अवाम पर पेट्रोल का जो बम है, ये ऐसा गिरेगा कि एकदम महंगाई फिर लोगों के बिलबिला उठेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये बर्दाश्त से बाहर है इस वक्त जो सिचुएशन है, इस वक्त कारोबार की जो सिचुएशन है, जो महंगाई की सिचुएशन है। हम तो ये रोना रो रहे थे कि खुदारा महंगाई को कुछ गवर्नमेंट कम करे, कुछ ऐसे तरीके बताए, कोई ऐसे इंसेंटिव करे कि लोगों पर बोझ कम पड़े, लोग बिजली का बिल नहीं भर सक रहे, लोग गैस का बिल नहीं भर सक रहे, लोग ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं कर सकते। ऊपर से ये पेट्रोल, तो जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ती है इसी तरह तमाम शोबों में कीमत बढ़ जाती है। हमारा यही ख्याल था कि जी इंडिकेटर अच्छे हैं, एक्सपोर्ट 5-7% प्लस हुई है, ऊपर से हमारी जो कलेक्शन है वो भी बहुत अच्छी हुई है, तो हमारा अपना ख्याल था कि ये 1-8% डेफिनेटली कम होगी। देखिए 1-8% अगर कम होती तो बिजनेसमैन को एक एतमाद आता कि यस ये नीचे की तरफ जा रहा है, हमारे इंडिकेटर बेहतर है। लेकिन बावजूद इसके कि इंडिकेटर बेहतर है, उसके बावजूद 22% पर रखना मैं ये समझ से बाहर है। और हम इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी हमें इस दफ़ा कि ये गवर्नमेंट जो है ये 22% पे रखेगी। बल्कि जो सदर है उनके वाज़ेह तौर पे कहना है कि जो हुकूमत की जानिब से हालिया पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा किया गया उसका इफेक्ट जो है वो नीचे आम जो आवाम है उस पर ज़ाहिर बोझ पड़ता है, क्योंकि उसके साथ ही तमाम ज़रूरती अशिया की चीज़ें की जो कीमतें हैं और उसमें महंगाई की शरह बढ़ने में ये तो एक बम की हैसियत रखता है जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं। तो जी पेट्रोलियम लेवी की वसूली में रिकॉर्ड इजाफा। रवा माली साल पहले शशमाही में पेट्रोलियम लेवी की वसूली में 166% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। इस हवाले से अशरफ खान की रिपोर्ट। लेवी की वसूली में रिकॉर्ड इजाफा, वजारत खजाना ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल पहले 6 माह में पेट्रोलियम लेवी की वसूली में 166% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। पहले 6 माह में पेट्रोलियम लेवी की मद में 473 अरब रुपए वसूल किए गए। वजारत खजाना के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल पहले 6 माह में पेट्रोलियम लेवी की मद में 178 अरब रुपए वसूली की गई थी। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम लेवी में नुमाया इजाफे की वजह से रिकॉर्ड इजाफा हुआ। माहिरीन का कहना है हुकूमत फी लीटर पेट्रोल और डीजल पर 60 रुपए पेट्रोलियम लेवी वसूल कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक नवा माली साल बजट में पेट्रोलियम लेवी से 870 अरब रुपए मुख्तस है। साल 2022-23 में पेट्रोलियम लेवी से 542 अरब रुपए इकट्ठे हुए थे। अशरफ खान, सिटी 21। PIA मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल का सालाना स्पोर्ट्स गाला जारी है। मजीद जानेंगे मोहम्मद हम्माद से, अपडेट कीजिएगा। देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ PIA मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल में, जिसका एनुअल स्पोर्ट्स डे इस वक्त जारी है, जिसमें तलबा और तलबात की एक बड़ी तादाद मौजूद है जिन्होंने मुख्तलिफ दौड़ के मुकाबलों में हिस्सा लिया है। हमारे साथ जो है स्कूल की प्रिंसिपल समरा कवल मौजूद है, हम उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैम ये बताइएगा, बड़ा ही ज़बरदस्त स्पोर्ट्स डे यहाँ पर जारी है, क्या कहेंगी कितना ज़रूरी है आजकल बच्चों की नशोनुमा के लिए इस तरह के जो है खेलों के मुकाबले कराना? देखिए स्पोर्ट्स जो है वो हेल्दी बॉडी होगा तो हेल्दी जो है वो बच्चे अपनी एजुकेशन को भी जारी रख सकेंगे। तो इस हवाले से स्पोर्ट्स का होना हर स्कूल में बहुत ज़रूरी है। तो हर साल जो है हम इसकी तैयारी करते हैं और इसको एनुअल डे पे पूरा एक भरपूर तरीके से मनाया जाता है, जिसमें बच्चे बहुत जोशो खरोश से हिस्सा लेते हैं और मुख्तलिफ इवेंट्स में मेडल्स और ट्रॉफीज़ जीतते हैं, जो कि वालिदैन के लिए भी बड़ी खुशी का बायस होता है। बच्चे इससे लीडरशिप में आगे आते हैं और हार जीत का जज्बा उनमें पैदा होता है कि हारने वाली टीम जीतने वाली टीम को ग्रीट करती है। इस तरह बच्चे थोड़ा सोशल भी होते हैं, उनका सोशल बैकग्राउंड बढ़ता है और बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर खेलों में हिस्सा लेने के बाद एक दूसरे के साथ मिलकर रहना और उनके साथ एक फ्रेंडशिप जो है वो फ़रोग पाती है। ये बता दीजिएगा कितने ग्रेड से लेके कितनी ग्रेड तक के बच्चों का ये जो है स्पोर्ट्स हो रहा है? एक्चुअली हमारा स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा है और यहाँ पे चूँकि हायर सेकेंडरी स्कूल है और कॉलेज तक की क्लासेस हैं। कल हमारा जो था प्राइमरी तक था, आज हमारा प्री प्राइमरी तक था, आज हमारा प्राइमरी से ऑनवर्ड्स कॉलेज लेवल तक की स्पोर्ट्स हो रही हैं। तो उसमें मुख्तलिफ हर्डल रेस है, स्पून रेस है, सैक रेस है, 3 लेग है और इसके साथ साथ PT डिस्प्ले बहुत ज़बरदस्त बच्चों ने तैयार किया है। इंशाल्लाह वो सब ये करेंगे। हमारे साथ मौजूद है समरा कमल, जो कि स्कूल के प्रिंसिपल है, जिनका ये कह रहा है कि बच्चों की नशोनुमा के लिए जो है स्कूलों में स्पोर्ट्स डे का इनकाद ज़रूरी है, क्योंकि यही बच्चे जो है मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेने के बाद आगे किसी न किसी एक खेल को चुन के आगे बढ़ सकते हैं और किसी एक खेल में जो है अपना नाम बनाकर न सिर्फ अपना नाम बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन